السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ، کیو میکس عارف آرکیٹ، الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ دنیا صاف اور سبز توانائی کی طرف دیکھ رہی ہے، ماحولیات اور فضا کی حفاظت سب کی ذمہ داری۔ بی جے پی نے تلنگانہ کے کسی بھی پروجیکٹ کو قومی درجہ نہیں دیا، بایو گیس پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے بھٹے وکرمارکا کا خطاب۔ ریاست میں باصف گلوبل بزنس سروسز سے موسوم گلوبل سروس ہب کے قیام کا اعلان، 3000 افراد کو روزگار کے مواقع، حکومت کو لیٹر آف انٹینٹ پیش، کمپنی کے نمائندوں کا ریاستی وزیر سریدر بابو کے ساتھ اجلاس۔ SIR پر سب توجہ دیں، یہ ووٹ ڈالنے کا نہیں، شہریت کی برقراری کا مسئلہ۔ اسٹالن اور ممتا بنرجی SIR کی وجہ سے ہار گئے، نام نہاد سیکولر جماعتیں BJP کو نہیں روک سکتی، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کا مجوزہ دورہ تلنگانہ کی تیاریاں، سیکریٹریٹ میں چیف سیکریٹری کی صدارت میں اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس، تمام محکموں کو تال میل کے ساتھ بہتر انتظامات کی ہدایت۔ مکتھل کے جنگلاتی علاقے میں جنگلی جانوروں کے شکار میں ملوث ٹولی گرفتار، ایئرگن اور دوسرے ہتھیار ضبط، شکار کے ویڈیوز بھی منظر عام پر۔ حیدرآباد باچوپلی پرگتی نگر میں فرنیچر کی دکانوں میں لگی آگ، بھاری مالی نقصان۔ محبوب نگر میں بینکٹ ہال میں آگ لگنے کا واقعہ، بالاپور میں پلاسٹک کا گودام جل گیا۔ اور سورارم پولیس اسٹیشن حدود میں گھر والوں کے ساتھ سو رہی 6 ماہ کی بچی کا اغوا، بائک سوار ملزمین کی تلاش جاری۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔
गंभीराव पेट में पंतलुगारी टोटा के मुकाम पर कायम किए जा रहे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लिए नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने भूमि पूजन अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत, वज़ीर IT, वज़ीर ट्रांसपोर्ट समेत दीगर मौजूद थे। बायोगैस प्लांट के भूमि पूजन प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि घास से गैस तैयार करके किसान इजाफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कम खर्च और कम सरमायाकारी के साथ ये मंसूबा किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया साफ और सब्ज तवानाई की तरफ देख रही है और हिंदुस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ इस सिमत में आगे बढ़ रहा है। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियात और फ़िज़ा की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए सेहतमंद और मुतबादिल फसलों के साथ हॉर्टिकल्चर पर भी तवज्जो देनी चाहिए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली काम कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2014 के बाद इख्तिदार में आने वाली बीजेपी ने तेलंगाना के किसी भी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया। साथ ही यकीन दिलाया कि किसानों के मफाद में हर मुफीद मंसूबे की हुकूमत हौसला अफजाई करेगी। आलमी सनती कंपनी ने हैदराबाद में बासिफ ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ग्लोबल सर्विस हब कायम करने का ऐलान किया है। इस मंसूबे से तकरीबन 3000 अफराद को रोजगार के मौके फराहम होने की तवक्का है। यह मुजवजा हब BASF के आलमी सर्विस नेटवर्क के लिए स्ट्रेटेजिक मरकज़ के तौर पर काम करेगा, जहां फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज से मुताल्लिक़ खिदमात अंजाम दी जाएंगी। मंगल को होटल ताज कृष्णा में मुनक्किदा एक खुसूसी तकरीब के दौरान बासिफ के नुमाइंदों ने रियासती वजीर बराए IT और सनत को ग्लोबल सर्विस हब के क़याम के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पेश किया। 160 साल से ज़ायद कदीम तारीख रखने वाली बासिफ दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में खिदमात अंजाम दे रही है। कंपनी केमिकल्स, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सोशल्स और सरफेस टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड केयर और ज़रई शोबों में नुमायां मौजूदगी रखती है। वज़ीर माल, हाउसिंग, इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा P. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में रियासत में किसान दोस्त हुकूमत चल रही है। उन्होंने साबिक़ हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 1 लाख रुपए के कर्ज माफ़ करने में पिछली हुकूमत को 10 साल लग गए, जबकि रियासत को कर्जों में डुबोने के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने किसानों को 21,000 करोड़ रुपए अदा किए हैं। हनमकुंडा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मैदान में मुनक्किदा मेगा रेतु मेला प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर में धान की काश्त की मुखालिफत की जाती थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद धान उगाने वाले किसानों को इमदादी कीमत के साथ बारीक धान पर 500 रुपये बोनस भी दिया जा रहा है। पोंगलेटी ने कहा कि किसानों को फी एकड़ 12,000 रुपये माली इमदाद और ज़रई आलात फराहम किए जा रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत की मैचिंग ग्रांट के लिए 1200 करोड़ रुपये भी अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को हकीकी मानों में राजा बनाने तक आराम नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के 10 मई को तेलंगाना दौरे के पेश नज़र रियासती चीफ सेक्रेटरी ने मंगल के रोज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया गया और तमाम महकमों के हुक्काम को बाहमी तालमेल के साथ मुनासिब इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और इसी रोज़ एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस महकमे को ब्लू बुक के मुताबिक सख्त सिक्योरिटी, अमनो अमान, ट्रैफिक और बंदोबस्त के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत दी। फायर सर्विसेज हुक्काम को बेगमपेट एयरपोर्ट, हेलीपैड्स और दीगर मकामात पर फायर इंजन तैनात करने, जबकि महकमे सेहत को ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकामात दिए गए। उन्होंने पुलिस, GHMC और R&B हुक्काम को वज़ीर-ए-आज़म के काफिले के रास्तों का मुआयना करके तमाम ज़रूरी मरम्मती काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी। साथ ही बिजली महकमे को दौरे के तमाम मुकामात पर बिला तात्तुल बिजली फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। इजलास में DGP CV आनंद, रमेश, सुमति, GHMC कमिश्नर RV कर्णन, फायर सर्विस DG विक्रम सिंह मान समेत मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम शरीक थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की हार के लिए
एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन और SIR को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि रियासत में मुसलमानों के साथ भी मुसलसल नाइंसाफ़ी की गई। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने उन वोटर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों की तायीद की। मजलिस ने बंगाल में 11 सीटों पर मुकाबला किया था। उन्होंने कहा कि कांडी जैसे इलाकों में मजलिस ने अच्छा मुजाहरा किया और मालडा और मुर्शिदाबाद ज़िलों में उन्हें मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, मगर एक बात है कि ना सिर्फ बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बल्कि पूरे देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ये सोचना है कि आपने वोट डालने का काम तो किया, मगर आपकी वोट की कीमत क्या है। महाराष्ट्र में यही बात आपसे कही गई थी कि सरकार में आने का है, गवर्नमेंट बनाने का है, नहीं बना सके। बिहार में यही बोला गया कि सरकार बनाने का है, नहीं बना सके। मगर सीमांचल की जनता को लाखों सलाम, उन्होंने MIM पार्टी को अपनी मोहब्बत और अपनी इज़्ज़त और अपनी मेहनत से वहाँ पर अपनी लीडरशिप को पैदा कर दिया। बंगाल में आज नहीं सरकार बनाना है, बस सरकार 15 साल सरकार है, क्या हुआ मुसलमानों का? आपने वोट दिया तब भी बीजेपी वहाँ पर जीत गई। दिल्ली में ऐसे हुआ, नहीं सरकार बनाने का है, आप नहीं बना पाए, आपने वोट दिया, वहाँ बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना ये है कि यकीनन हमको फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं निकल सकता कि कोई मुसलमान की पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। आसाम में देखिए, आसाम में ही बोला गया 50,000 मुसलमानों को हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से उनको बेघर कर दिया। फिर वहाँ पर बोला गया सरकार बनाने का, सरकार बनाए बताइए। अगर वही अजमल साहब के ज़्यादा MLA जीतते तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस भी होती वहाँ पर। तो ये चीज़ है, अब वो बताए, आप लोगों को प्रूफ करें कहाँ धांधली हुई, उनको वो बता सकते हैं, क्योंकि वो तो 15 साल से CM रही हैं। अब वो आप लोगों को बताए क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि एक वजह SIR भी थी, मगर ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी और वो देख रही थी कि बिहार में SIR का क्या हुआ। तो उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने जितने नाम कटे गए उनको हेल्प क्यों नहीं किया आपने? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक सिंबॉलिज्म था वो। हैदराबाद में हम लोगों ने, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस में कितने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। आप तो सत्ता में थे ना, आप तो कर सकते थे। आप कोर्ट को गए, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट से पहले आप क्या क्या नहीं करना था, चाहिए था आपको। आज भी हम कह रहे हैं कि SIR को सिटीजनशिप से जोड़ना ये गलत है। NCR का कानून है जो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में आता है। तो मैं आपके ज़रिए से जहाँ जहाँ अब SIR होने वाला है वहाँ की आवाम से अपील करूँगा कि आप अपने मैपिंग करवाइए और सही तरीक़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स होने मत दीजिए। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाइए, बर्थ सर्टिफिकेट है या आपका पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। और महाराष्ट्र में और तेलंगाना में तो हमारे हेल्प डेस्क सेंटर्स चल रहे हैं और 9 तारीख के दिन औरंगाबाद में मैं खुद जा रहा हूँ। वहाँ पर हम लोग जो एक नया सिस्टम जो क्रिएट करें उसका हम लॉन्च करेंगे ताकि वोटर्स को आसानी हो मैपिंग कराने में। उसके बाद देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद मुश्किल हो जाता है और अंडर एस्टिमेट मत करिए। सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, इसका ताल्लुक़ आपकी सिटीजनशिप से है। तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मौलाना हमारे बहादुरगंज के हैं, उनकी एक चलती ट्रेन में उनका जो हत्या कर दी गई है, उस सिलसिले में भी मैंने रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को लेटर लिखा है कि वो इसका इंक्वायरी कराए, क्योंकि मौलाना ने कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपनी वाइफ से बात की है कि उनको लोग में ट्रेन में मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। और बरेली पुलिस के पास भी कल मरहूम मौलाना की
वाइफ गई थी, बेवा गई थी वो वहाँ के MIM के लीडर्स के साथ, और उन्होंने बातों तक कंप्लेन भी दिया, एक FIR भी इशू हुआ। मगर हम ये डिमांड करते हैं कि रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब और रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे की पुलिस और बरेली की पुलिस इसको मर्डर के तौर पर देखें और जस्टिस करें। ये एक खुली मिसाल है, ये हेट क्राइम है। मौलाना का मर्डर हुआ है ट्रेन में, ये एक हेट क्राइम है और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज़ के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उस कंपार्टमेंट में जिसमें मौलाना थे कौन कौन पैसेंजर थे उसमें, और उनको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त से सज़ा होनी चाहिए और मौलाना की मौत को रायगा नहीं जाना देना चाहिए। वो उन्होंने जो हरकत की है उनको क़ानून के ज़रिए सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, तभी जाकर मौलाना को और उनके मौलाना की वाइफ को, उनके परिवार को जस्टिस मिलेगा। एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर। लोग मुझ पे बहुत उंगलियां उठाते, आजकल बहुत से लोग हो गए जो खाली घर में बैठ के एक आर्टिकल लिखते, 1 मिनट का 2 मिनट यूट्यूब बनाते, ज़मीन पर नहीं जाते ये लोग। और यही लोग दुश्मन है मुसलमानों के, जो नहीं देख रहे इन चीज़ों को, जो ये समझते नहीं मुस्लिम लीडरशिप को खाली वोट। अरे वोट डालने वाले कब तक बनेंगे मुसलमान? सिटीजन विद राइट्स नहीं बनेंगे। बताइए आज आप दारुस्सलाम में बैठे, यहाँ पर 1000 लोग बैठे हुए, 1 महीने से SIR का काम चल रहा है। बंगाल में क्या TMC ने क्या काम, ये कोर्ट को गए अरे आप करना था। महाराष्ट्र में जाइए, औरंगाबाद में देखिए, मैं 9 तारीख को जा रहा हूँ, वहाँ पे काम चल रहा है। 60 मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एडिशनल और एक 2022 है जहाँ पर 30 to 40% मुसलमान है। क्या हो रहा भाई? फिर इतना सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब क्यों है वहाँ पर? 15 साल से तो सरकार है ना, क्या किया आपने? नहीं, सत्ता में आना है, सत्ता में आना है तो आपका क्या फायदा हो रहा है? आपका फायदा हो रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है? आप तो वोटर के साथ ट्रीट कर रहे हो उनको। अभी तो ये सिटीजनशिप का टेस्ट हो गया जो नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि SIR को आप सिटीजनशिप से जोड़कर ये गलत कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती सिटीजनशिप को, उसके NPR NRC के रूल्स भी हैं, मगर इसको आप जोड़ रहे। तो इसीलिए इस SIR में सबकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, ये आपकी सिटीजनशिप को बरकरार रखने का मसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट भी इसको सीरियस लेंगी। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी SIR हुआ, समझे? स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी SIR हुआ, और क्या हुआ? दोनों हार गए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को, अब यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी देख ले उस चीज़ों को। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे हैदराबाद को, वो मेट्रो के पैसे देंगे, ज़रा मेट्रो के फेज़ 2 के, उसको ज़रा पैसे देना चाहिए ना भाई, ज़रा दे, मेट्रो को दे दे आप, प्रोजेक्ट्स है उसमें थोड़ा पैसे दीजिए आप। अब जाहिर है, अब मेरे बोलने के बाद हम इतना दिए तुम एहसान नहीं कर रहे, इतना दिए एहसान नहीं कर रहे। तेलंगाना का पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप यहाँ पर भी आप इंसाफ करिए तेलंगाना से। रियासती वजीर इंडोमेंट कुंडा सुरेखा ने कहा है कि बीजेपी लीडर सिर्फ जय श्री राम नारों तक महदूद हो गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये नारे लगाने से ऊपर से पैसे बरसेंगे। एक सरकारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने वजीर आजम के दौरे तेलंगाना पर तनकीद करते हुए कहा कि इससे रियासत को कोई फ़ायदा नहीं होगा और तेलंगाना के लिए फंड्स लाने में बीजेपी वज़रा नाकाम रहे हैं। कुंडा सुरेखा ने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश के पुष्करों के लिए फंड्स दिए गए, लेकिन तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह के लिए काम कर रही कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करने का हक न BRS को है और न ही बीजेपी को। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने मुतालबा किया कि वजीर आजम के 10 मई के हैदराबाद दौरे से पहले कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में CBI जांच पर मरकज़ वजाहत करे।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़ीर पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने इंतखाबात से पहले कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हज़ारों करोड़ की बदउनवानी के इल्ज़ामात लगाए थे, मगर इख्तिदार में आने के बाद सीबीआई जांच नहीं करवाई जा रही है। महेश कुमार गौड़ ने सवाल किया कि अगर मरकज चाहे तो सीबीआई जांच फौरी शुरू हो सकती है, फिर साबिक वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस की हिमायत के बगैर बीजेपी को रियासत में कामयाबी नहीं मिलती। साथ ही कहा कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के लिए कर्ज माफ़ी, रैतु बंधु, बोनस और मकई खरीदारी जैसे इक़दाम कर रही है। मगरब बंगाल के इंतखाबी नताइज पर तबसरा करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने वोटों में धांधली की और लाखों वोट हज़फ किए गए। उन्होंने तेलंगाना आवाम से अपील की कि अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस रहें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पीर के रोज़ उस हुकूमती ज़ाब्ते पर दिए गए अबूरी अहकामात में तोसी कर दी जिसके तहत SC, ST, BC, अक़लियती और माज़ूर तलबा की फ़ीस पहले उनके खातों में जमा करने और उस वक्त तक कॉलेजों को दाखिलों के दौरान फ़ीस वसूल न करने की हिदायत दी गई थी। निजी कॉलेजों की जानिब से फ़ीस रिइंबर्समेंट से मुताल्लिक़ जारी GOs को चैलेंज करते हुए दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस ने समाअत की। समाअत पर दौरान सरकारी वकील S. राहुल रेड्डी ने अदालत को बताया कि हुकूमत 2025-26 तालीमी साल समेत वाजिबुल अदा बकायाजात और GO की शिकों से मुताल्लिक़ तफसीली काउंटर दाखिल करेगी, जिसके लिए मज़ीद मोहलत दरकार है। उन्होंने कहा कि कई कॉलेजों के लिए पहले ही टोकन जारी किए जा चुके हैं और मुतल्लिक़ा वेलफेयर महकमों के ज़रिए फ़ीस रिइंबर्समेंट स्कीम के तहत अदायगियाँ जारी रहेंगी। दरख्वास्त गुजार कॉलेजों के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि GO की शिक 5-12 के मुताबिक हुकूमत DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए तलबा के खातों में रकम जमा करेगी, जिसके बाद तलबा TASRC के मुक़र्रर करदा फ़ीस कॉलेजों को अदा करेंगे। वकला ने कहा कि इस ज़ाब्ते की वजह से कॉलेजेस के लिए बराह रास्त फ़ीस वसूल करना मुमकिन नहीं रहेगा, इसलिए अबूरी अहकामात बरकरार रखे जाएँ। अदालत ने मौजूदा तालीमी साल को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को हिदायत दी कि 24 जून तक अपना काउंटर दाखिल करें। जंगांव असम्बली हल्के के यशवंतपुर गाँव में कायम IKP फसल खरीदारी मरकज़ का BRS वर्किंग सदर KT रामाराव MLA और दीगर ने दौरा किया। इस मौके पर किसानों ने बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों से फसल खरीदारी न होने के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि कई बार मार्कफेड हुक्काम और कलेक्टर से अपील के बावजूद खरीदारी शुरू नहीं की गई। KTR ने मार्कफेड MD श्रीनिवास रेड्डी से फ़ोन पर बात करते हुए हुकूमत के रवैये और मार्कफेड की नाकामी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत वाज़े करे कि फसल खरीदी जाएगी या नहीं। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को कम अज़ कम इमदादी कीमत 2460 रुपये और बोनस देने से बचने के लिए मकई की खरीदारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मार्कफेड के नाम पर लिए गए तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए दूसरे कामों के लिए मुंतकिल किए गए हैं, जिसकी वजह से इदारे के पास फंड्स नहीं बचे और रियासत में मकई खरीदारी रुक गई है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर रैतु बंधु और फसल खरीदारी शुरू न की गई तो रियासत भर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। साथ ही कहा कि राहुल गांधी की किसान डिक्लेरेशन पर अब तक अमल नहीं हुआ, मगर BRS किसानों के हक में दबाव जारी रखेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। सदर मजलिस ने बताया कि याकूतपुरा के नशीमन नगर में 62 लाख रुपए की लागत से G+1 और CC रोड के काम मुकम्मल किए गए हैं। बहादुरपुरा के अलियाबाद में 16,76,000 रुपए की लागत से RO प्लांट तामीर हुआ है। याकूतपुरा में MP लैड फंड से तकरीबन 78,76,000 रुपए के काम अंजाम दिए गए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि तालाब कट्टा में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की इमारत का मंसूबा है। 1-2 महीने में इस काम का आगाज होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने सड़कों की तोसी से मुताल्लिक़ बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर 237 करोड़ रुपए के मसारिफ से इन कामों को मुकम्मल किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि मेट्रो काम के सिलसिले में सड़कों की तोसी के काम भी जारी हैं। उन्होंने बताया कि याकूतपुरा में 4 तब 5 दिन में 27 करोड़ रुपए के कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज के अलावा साबिक़ कॉरपोरेटर्स और मजलिस के मुकामी कारकुन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हैदराबाद पार्लियामेंट के MP लैड स्कीम के तहत आज नशीमन नगर की आवाम की नुमाइंदगी पर और उनके इस मुतालबे पर यहाँ पर एक 62 लाख की लागत से ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का एक कम्युनिटी हॉल का तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है
اور یہاں کے محلے کے ذمہ داروں کا یہ بولنا ہے کہ یہاں پر ایک بستی دواخانے کا قیام عمل میں لایا جائے. تو انشاءاللہ تعالی ایم ایل اے صاحب جناب جعفر حسین میراد صاحب اس کے لیے کوشش کر کے یہاں پر ایک اس نئے کمیونٹی ہال میں بستی دواخانے کو لانے کی پوری کوشش کریں گے. اور ویسے ہی آج علی آباد میں علی نگر میں قریب 17 لاکھ کی لاگت سے ایک واٹر پلانٹ کا افتتاح عمل میں ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے ایم پی بجٹ سے یو پی ایس سی جو تالاب کٹے میں ہے وہاں پر بھی گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کی لاگت سے ایک ایسٹیمیٹ بنایا گیا ہے قریب 3.5 کروڑ کا. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان قریب میں کلیکٹر صاحب کی منظوری کے بعد اس کا ٹینڈر ہوگا اور 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر اس کام کا بھی افتتاح ہم کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ڈبل پورہ سے ناگا بولی جو روڈ وائڈننگ کا کام ہے جس میں قریب 90 جائیدادیں افیکٹڈ ہیں وہ کام بھی چل رہا ہے. اور شیخ فیض کما سے ڈبل پورہ 111 پراپرٹیز اس روڈ وائڈننگ میں لیے جائیں گے, وہ بھی کام زیر دوران ہے. بڑا بازار سے بھوانی نگر اس میں 147 جائیدادیں روڈ وائڈننگ میں جائیں گی, وہ کام بھی زیر دوران ہے. اور ان تینوں کاموں کی لاگت قریب 233 کروڑ کے قریب ہے ان تینوں کاموں کی روڈ وائڈننگ کے. تو یہ کام انشاءاللہ زیر دوران ہے, کام چل رہا ہے. اور ان قریب میں آج میں اور میراد صاحب بلدیہ کے لوگوں سے عہدیداروں سے میٹنگ لیے جس میں کمشنر بلدیہ بھی تھے, چیف انجینئر بھی تھے. تالاب کٹے میں قریب 50 کروڑ کی لاگت کے ڈرین کا کام ہے. میں آج ہمارے جے شنجن صاحب سے بات کیا جو اسپیشل آفیسر ہیں کہ جلدی اس کا آپ ٹینڈر کروائیے. تو مجھے یقین ہے کہ 1 مہینے 1.25 مہینے میں انشاءاللہ وہ کام کا بھی شروعات کیا جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اولڈ سٹی میں جوبلی بس سٹینڈ سے لے کر فلک نما تک میٹرو کے ریل کے کام کے سلسلے میں روڈ وائڈننگ کا کام جاری ہے. اور چیف منسٹر نے جو وعدہ کیا کہ 2028 کے اسمبلی الیکشن سے پہلے وہ اس کام کو مکمل کروائیں گے. تو یہ مختصر سی رپورٹ ہے مجلس اتحاد کی جانب سے, اور انشاءاللہ 4-5 دن کے اندر اور بھی مختلف قریب 27 کروڑ کے کاموں کا افتتاح حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں کیا جائے گا. میں بھی انشاءاللہ اس کاموں کے افتتاح میں مختلف مقامات پر جا کر ان کاموں کا ہم لوگ افتتاح کریں گے. اور جو مینٹیننس کے کام ہے نا پورے مینٹیننس کا بہت بہت شکریہ. صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جہانما میں سالار ملت منرل واٹر پلانٹ کا افتتاح انجام دیا جس کی لاگت 16 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے. رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے بتایا کہ مجلس کی جانب سے مذکورہ واٹر پلانٹ لگانے سے عوام کو شفاف پینے کا پانی دستیاب ہوگا. انہوں نے بتایا کہ مزید 3 واٹر پلانٹس بھی عنقریب لگائے جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ مجلس نے واٹر پلانٹ لگا کر ایک منفرد کام کیا ہے جس کی دوسرے حلقے پارلیمان میں مثال نہیں ملتی. اس موقع پر مجلس کے سابقہ اراکین بلدیہ کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور متمدین موجود تھے. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل ریاض الحسن آفندی نے منگل کو وزیر اسپورٹس وی سریہری سے ملاقات کرتے ہوئے ملیشیا میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل اوپن کراٹے چیمپئن شپ کے لیے بلیک بیلٹ صبا ماہین کی مدد کے لیے نمائندگی کی. رکن کونسل نے وزیر اسپورٹس کو بتایا کہ صبا ماہین ایک باصلاحیت کراٹے کھلاڑی ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اور ان کی تربیت میں تعاون کیا گیا تو وہ اور بھی بہتر مظاہرہ کریں گی, ریاست تلنگانہ کا نام روشن کریں گی. اس موقع پر صدر نشین اسپورٹس اتھارٹی شیو سینا ریڈی بھی موجود تھے. رنگاریڈی ضلع کے شمشاباد کے قریب کوتوال گڑھا میں بغیر اجازت چلائے جا رہے اسٹون کرشرز کے خلاف ہائیڈرا نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں منہدم کر دیا. مختلف کمپنیوں سے تعلق رکھنے والی 5 کرشر مشینوں کے ساتھ 12 RMC یونٹس کو بھی ہٹا دیا گیا. پولوشن کنٹرول بورڈ اور مائننگ محکمے کی شکایت پر ہائیڈرا نے یہ کارروائی انجام دی. کرشر مشینوں کو ہٹانے کے لیے PCB اور مائننگ حکام نے ہائیڈرا سے مدد طلب کی تھی. شکایت میں کہا گیا کہ کروڑوں روپے کے بقایا جات ادا کیے بغیر یہ یونٹس غیر قانونی طور پر چلائے جا رہے تھے. واضح ہے کہ BRS کی ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بعد حکومت دباؤ میں آ گئی. اطلاعات کے مطابق آخرکار ریاستی حکومت نے نظامی کارروائی کے لیے قدم آگے بڑھایا. تلنگانہ عازمین حج کے چوتھے قافلے کو بھی تلبیہ کی گونج میں پیر کی رات ودا کیا گیا.
430 खुश नसीब आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। चौथे काफ़िले की रवानगी के साथ ही अब तक 1720 आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। काफ़िले को मौलाना मोहम्मद खैरुद्दीन सूफ़ी के अलावा सदर नशीन हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल शाह बियाबानी और खुसरो पाशा और दूसरों ने झंडी दिखाकर विदा किया। मंगल की शाम भी आज़मीन का एक और काफ़िला रवाना होगा। टास्क फोर्स गोलकुंडा और महकमे जंगलात की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जंगली जानवरों हिरन, मोर, खरगोश और दीगर जानवरों के शिकार में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुजफ्फर हुसैन, अहमद आमिर, अब्दुल्ला बिन साहिल, सऊद बिन मोहम्मद बिलाद, मसूद बिन मोहम्मद और शेखर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुजफ्फर हुसैन उर्फ गुड्डू और उसके साथी शेखर की टिल्ला पर जंगली जानवरों के शिकार में मुलविस पाए गए। शिकार के लिए एयरगन का इस्तेमाल किया गया था। बताया गया कि 15 जनवरी 2025 को मुजफ्फर ने एयरगन के जरिए मक्तल के जंगलाती इलाके में मोर का शिकार किया था। 18 मार्च 2025 को मुजफ्फर ने जंगली सूअर का शिकार किया था। अप्रैल 2025 में मुजफ्फर ने 2 हिरनों का शिकार किया था। मई 2025 में भी मुजफ्फर ने हिरनों का शिकार किया और इन जानवरों के गोश्त को मुजफ्फर के घर में फ्रिज में रखा गया था। 14 जुलाई 2025 को भी मुजफ्फर हिरन के शिकार में मुलविस था। नवंबर 2025 और 18 फरवरी 2026 को भी मुजफ्फर शिकार में मुलविस पाया गया। बताया गया है कि मुलजिमीन शिकार की वीडियो भी बनाया करते थे। पुलिस ने मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस टोली को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स ए श्रीनिवास राव की निगरानी में इन मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उनके कब्जे से 4 एयरगन, 1 लाइसेंस याफ्ता राइफल, 20 कारतूस स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया है। जब्त की गई अशिया की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। जुबली हिल्स के हुदूद में पैसे वाले घर की लड़कियों को फंसाने के रैकेट को सरगना अर्जुन और उसके अफराद ख़ानदान को गिरफ्तार किया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अर्जुन का भाई राजीव, माँ, उसका मामू और दूसरे 4 अफराद इस रैकेट में मुलविस थे। ये टोली इंस्टाग्राम पर खुद को दौलतमंद जाहिर करते हुए पैसे वाले घर की लड़कियों को निशाना बनाया करती थी। लड़कियों को महंगी गाड़ियों में घुमाया जाता था और फिर उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा किया जाता था और ब्लैकमेल के तौर पर लाखों रुपए हड़प लिए गए थे। पुलिस ने इसकी तहकीक करते हुए इन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इस टोली के साथ दूसरे रवाबित की भी जाँच की जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीर के दिन एक ड्रामे को लेकर एबीवीपी की तरफ से एहतजाज किया गया। इस वाक़े को लेकर यूनिवर्सिटी तलबा की तरफ से एहतजाज भी किया गया। तलबा का कहना था कि एबीवीपी के कारकुन इश्तियाल अंगेज नारे लगा रहे थे। बाज़ तलबा पर मुबैना हमले का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस को भी तलब कर लिया गया था और फिर हालात पर काबू पाया गया। खुतबुल्लाहपुर जोन के सुराराम पुलिस स्टेशन के हदूद से 6 माह की बच्ची का मुबैना अगवा कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 2 अफराद बाइक पर आए। मल्लारेड्डी हॉस्पिटल के रूबरू पत्थर की दुकान के सामने जब बच्ची अपने अफराद ख़ानदान के साथ सो रही थी, 6 माह की बच्ची को अपने साथ लेकर फरार हो गए। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। लड़की की तलाश के लिए टीमों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। हैदराबाद बाचोपल्ली और प्रगति नगर के दरमियान में वाक़ फर्नीचर की दुकानों में आग लग गई। तकरीबन 8 दुकानें आग की जद में आ गईं। पीर की रात ये वाक़या पेश आया। आग के बुलंद शोलों और धुएं के फैलने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। 8 दुकानों में रखा हुआ सामान, जिसमें फर्नीचर शामिल था, मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाक़या पहुँचकर काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुताल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े बिलाल नगर कुत्तापेट के करीब गालिब कॉलोनी में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस के मुताबिक किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। महबूबनगर में आज सुबह बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। बताया जाता है कि एक बैंक्वेट हॉल में आग लगते ही फौरी महफूज तौर पर निकाल लिया गया। तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया है।
किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहीराबाद शाहरा 65 के पास हुए सड़क हादसे में मंदिर के दर्शन से लौट रही गाड़ी आगे खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि 3 जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक चेवल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद महाराष्ट्र की तुलजा भवानी मंदिर दर्शन के लिए गए थे और जब वो वापस हो रहे थे ये हादसा पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त 16 साल रोहित और 26 साल महेश गौड़ की हैसियत से की गई है। एम इतेंद्र साई, कार्तिक और नरसिम्हलू जख्मी बताए गए हैं। इन तीनों को जहीराबाद के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। शहर के एक ऑटो ड्राइवर ने तलाई चेन छीनने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 16 केसेस में मुलविस सारिक को पकड़वाया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद जहीर बेगम बाजार से गुजर रहे थे। इस दौरान 2 खवातीन सड़क के किनारे पैदल जा रही थीं। बाइक सवार सारिक ने खातून के गले से तलाई चेन छीनने की कोशिश की। जहीर ने जब खातून की चीखो पुकार सुनी तो उन्होंने अपना ऑटो सारिक की बाइक से टकरा दिया। सारिक की जानिब से जहीर पर लाठी से हमला भी किया गया, लेकिन जहीर ने इसका मुकाबला किया और पुलिस के आने तक उसे पकड़े रखा। जहीर की इस बहादुरी पर कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने भी उन्हें तहनीयत पेश की और इनाम से नवाजा। रेलवे पुलिस ने बैन रियासती गांजे के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए जायदस 14 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। रेलवे पुलिस के मुताबिक इसने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके गांजा मुंतकिल करने वाले जवाहिर कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अखिलेश कुमार गांजे का पेडलर फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि मुलजिम बेलगाम ओडिशा से गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था कि वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि जवाहिर कुमार रियासत बिहार का रहने वाला है, वो सेंटरिंग का काम करता था। वो अखिलेश कुमार से राब्ते में आया। अखिलेश ने जवाहिर कुमार को 7,000 रुपये मुआवजे पर बेलगाम से पूना गांजा मुंतकिल करने के लिए राजी कर लिया, लेकिन जैसे ही वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलवे पुलिस ने जवाहिर कुमार को गिरफ्तार करके जायदस 14 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया। रेलवे पुलिस को मफरूर अखिलेश कुमार की तलाश है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस की तरफ से पेश किए गए मुलजिम को अदालत ने 2 दिन कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अयान मुश्तबा हालत में घूम रहा था। पुलिस ने इसे तहवील में लेकर केस दर्ज किया था और अदालत में पेश किया था। नवे मेट्रोपॉलिटन अदालत ने जज पी नरसिंह राव ने अयान को 2 दिन कैद की सजा सुनाई। मुलजिम को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है।
खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम ऑपोजिट इंडियन बैंक जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स टोली चौकी हैदराबाद। दुनिया साफ और सब्ज तवानाई की तरफ देख रही है। माहौलियात और फिजा की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी। बीजेपी ने तेलंगाना के किसी भी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया। बायोगैस प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से भट्टे विक्रमार्का का खिताब। रियासत में बासिफ ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज से मौसूम ग्लोबल सर्विस हब के क़याम का ऐलान। 3000 अफराद को रोजगार के मौके। हुकूमत को लेटर ऑफ इंटेंट पेश। कंपनी के नुमाइंदों का रियासती वजीर श्रीधर बाबू के साथ इजलास। SIR पर सब तवज्जह दें, ये वोट डालने का नहीं शहरियत की बरकरारी का मसला। स्टालिन और ममता बनर्जी SIR की वजह से हार गए। नाम नेहाद सेकुलर जमातें बीजेपी को नहीं रोक सकते। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का मुजव्वज़ा दौरे तेलंगाना की तैयारियां। सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी की सदारत में आला सतही जायजा इजलास। तमाम महकमों को तालमेल के साथ बेहतर इंतजामात की हिदायत। मकथल के जंगलाती इलाके में जंगली जानवरों के शिकार में मुलव्विस टोली गिरफ्तार। एयरगन और दूसरे हथियार जब्त। शिकार के वीडियोस भी मंजरे आम पर। हैदराबाद बचोपल्ली प्रगति नगर में फर्नीचर की दुकानों में लगी आग। भारी माली नुकसान। महबूब नगर में बैंक्वेट हॉल में आग लगने का वाकया। बालापुर में प्लास्टिक का गोदाम जल गया। और सोराराम पुलिस स्टेशन हदूद में घर वालों के साथ सो रही 6 माह की बच्ची का अगवा। बाइक सवार मुलजिमीन की तलाश जारी। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।